Good evening, sir. Sir, at the outset, I'd like to extend a very warm welcome to you for this small program that we have today for releasing a very, very important document, sir. And very aptly labeled, sir, Chasing the Virus, a Public Health Response to COVID-19 Pandemic. This is a name coined by Secretary, sir. So this document has been prepared with inputs from all the divisions, notably the Public Health Division, which has spearheaded the response. It was documented with the support of NHSRC, and all the other program divisions have contributed to this document. But sir, I'd also like to mention that each and every line and word of this has been edited by Secretary Sir himself. So finally, this is a product which has actually been completely edited and designed by Secretary Sir. So sir, I'd also like to welcome Secretary Sir, DGHS, my colleagues Aarti and Manohar, Love and Dr. Kotwal, and Yuvraj and other members from NHSRC and the ministry who are here, sir. With this opening, sir, I'll request Secretary, sir, to tell us about this important document and also the sequel that sir has been planning. This is for the period from January to November, and there would be a sequel of this coming later. This would be a very valuable document, sir, for all stakeholders, not only for the current pandemic, but for any such future contingency that may arise. So with this, sir, I'll request you to kindly enlighten us about this particular document, which I think for you has been a labor of love. We would like to hear from you, sir. Thank you, sir. Honorable HFM, sir, my colleagues in the Ministry, Director General Health Services, ASH, ASMD, ASMA, JS Love, and Director of NHSRC, other colleagues. Sir, this is once in a lifetime pandemic, sir. So therefore, sir, it is imperative that we must document, because as time goes by, we tend to forget. So when things are fresh, they must be documented so that at a later date, analysis and greater and granular sort of debate on what went right, what went wrong could be initiated. So sir, it is in this background that we started this exercise, and as ASNMD has said that all program divisions of the ministry collaborated and they provided what they did. Plus, sir, there were certain cross-cutting issues which came from other ministries. For example, what we did in PPE, what we did in masks, what we did in oxygen plants. So that input we got from them. This, sir, stops short of the vaccine and clinical trials. So our aim was that probably in the second volume of this, we would be tracking the progress and development of how vaccines developed, how they were approved, and how they were rolled out. But that is for the second book, sir. Sir, on this occasion, we would be guided by your thoughts and your guidance on how we should document the remaining part of this endeavor, which is whole of the government and whole of the society endeavor, sir. Sir, at the end of the day, sir, we will also be privileged to hear you, because, sir, it was under your leadership that this whole enterprise unfolded, sir. Whether it was your leadership of the group of ministers, or whether it was your review meetings that you took with the Public Health Division, with Science and Technology Ministries, because they also contributed, with ICMR. So all that puts you, sir, in a very unique position where you had a perspective of how this infection unfolded right from day one when there was one case, and today when more than 1 crore people have recovered and gone home. Sir, on this occasion, I would request you that you should unveil this formally, and then probably you would also enlighten us with your guidance. Thank you, sir.
श्री राजेश भूषण जी और सभी उपस्थित अधिकारीगण और मीडिया के यहाँ उपस्थित बंधु, मैं समझता हूँ कि ये आज का दिन भी हम लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि एक तरफ ये चेजिंग द वायरस मेरे सामने रखा है और एक तरफ ये जो हर रोज़ सुबह शाम ये टॉकिंग पॉइंट्स आते हैं वो रखे हैं। और 30 जनवरी 2020 को हमारा पहला केस आया था और आज लगभग 1 साल और एग्जैक्टली 2 महीने के बाद 1 year and 2 months journey from the first case that was reported in India। आज सुबह का ये जो चार्ट मेरे सामने है तो 1,20,95,855 केसेस, यानी 1 साल और 2 महीने में हम इतने केसेस को चेज़ करा हमने, जो कि हमने चेज़ करते करते पकड़ लिया। इसके अलावा भी कितने थे जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आए, वी रियली डोंट नो। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें से 1,13,93,021 मरीज़ों को ठीक करके हम लोगों ने घर भेज दिया। कोविड को चेज़ करते करते हम लोग अभी चेज़ ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो इसका जो सेकंड एडिशन आएगा उसमें इस चेजिंग के साथ साथ एक आध कोई और वर्ड ज़रूर ऐड करिएगा कि समथिंग लाइक चेजिंग एंड क्रशिंग द वायरस, और तब तक इसको हम उस मुकाम पर पहुंच चुके होने चाहिए कि हमने लगभग इसको क्रश भी कर दिया। हम एलिमिनेट कर पाएँ या ना कर पाएँ, इरेडिकेट कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो तो अभी वायरस के बिहेवियर के बारे में इसलिए नहीं कहा जा सकता इरेडिकेट या एलिमिनेट की। इरेडिकेट वही चीज़ हो सकती है जो खाली इसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग में हो, तो कोई स्ट्रैटेजी लगा के हम कर लेते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स को या पोलियो को इसलिए इरेडिकेट कर दिया क्योंकि उसका सर्वाइवल केवल ह्यूमन बीइंग में होता था। इसके लिए तो थ्योरी अभी ये चल रही है कि ये जंप मार के आया है एनिमल किंगडम से और ह्यूमन बीइंग में। इसलिए आज भी अभी इस मीटिंग से जस्ट पहले WHO की एक मीटिंग थी जिसमें पहली बार उन्होंने 1.25 साल में जो संभावनाएं हैं उसके अंदर जो चाइना में रिसर्च हो रहा है और एनिमल किंगडम में उन्होंने क्या क्या टेस्ट किए, वो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया। दैट वाज ए लाइक फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन लास्ट 1 year and 2 months अराउंड दैट। तो सच बात तो यह है कि ये जो आपने ये जो मेहनत किया है इसको बनाने में, उस मेहनत को जो कि पिछले 1 साल 2 महीने में की गई उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर हैं हम में से सब लोग इसको गहराई और गंभीरता से जानते हैं कि हम लोगों ने इसको लड़ाई को लड़ने के लिए कितनी गहराई से काम किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक छोटे से छोटे
व्यक्ति से लेकर और हाईएस्ट लेवल तक सरकार की सारी व्यवस्थाओं में किस तरह से लोगों ने काम किया, अस्पतालों में किस तरह लोगों ने काम किया, नीचे तक स्टेट्स में किस तरह काम किया, ये सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने किया है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए और दुनिया से भी ज़्यादा जो आगे भविष्य के अंदर जिनमें से लोगों को इस तरह की कभी भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, उनके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रिकॉर्ड्स तो बहुत हैं, पता नहीं कितने हज़ारों रिकॉर्ड्स 1 साल 2 महीने के यहाँ डिपार्टमेंट में होंगे। देखा जाए तो 1 साल 3 महीना है क्योंकि ये लड़ाई तो पहले हफ्ते में जनवरी के शुरू हो गई थी। लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से डॉक्यूमेंट कर देना, जिस तरह से जहाँ हम देश को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं, अगले भगवान ना करे कोई पेंडेमिक, ये तो सबके लाइफ में लाइफ टाइम है क्योंकि जो 1918 वाला था वो तो हमने किताब में ही पढ़ा है, किसी ने देखा नहीं है। और हाँ, इतने लोग जो यहाँ पर हैं मेरे ख्याल से सब ने अपने छोटेपन में स्मॉल पॉक्स की लड़ाई को भी देखा है। जिस भी स्टेज में आप जहाँ भी रहे होंगे, हम लोग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट थे, डॉक्टर साहब भी मेडिकल स्टूडेंट रहे होंगे, और पोलियो की लड़ाई में तो सभी लोग किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं, तो वो हमने देखा है। लेकिन ये एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड है, ये जो कोविड की जो लड़ाई है, और इसके मेरे ख्याल से हज़ारों पहलू हैं। इसकी कंटिन्यूटी के अंदर जहां आप एक तरफ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आई रियली डोंट नो कि आपने जैसे कहा कि अभी इसका वॉल्यूम 2 आएगा, भगवान करे कि वॉल्यूम 2 पर ही बात ख़त्म हो जाए, आपको इसका वॉल्यूम 3 ना निकालना पड़े, या इसके वॉल्यूम 4 या 5 तक बात ना जाए। और जो वैक्सीन की जो डेवलपमेंट की यात्रा है जो, और उसको लगाने की जो आज यात्रा चल रही है, उसके ऊपर बात ख़त्म हो जाए। अभी जब आपने साइंस का बात किया तो मुझे ख्याल आया कि शायद मुझे लगता है कि साइंस के लोगों को भी अगर हम एक रिक्वेस्ट करें बुलाकर कि जो साइंस के अंदर जो साथ चीज़ें चल रही थी उसको भी एक प्रकार से, इसमें तो उसका रेफरेंस होगा ज़रूर, बट व्हेन वी आर राइटिंग द स्टोरी शायद उतनी डिटेल में साइंस का जो है रेफरेंस शायद उतनी डिटेल में हम लोग इसके अंदर उसका समावेश ना कर पाए। और शायद अभी उनके ख्याल में, क्योंकि उसको वो सब लड़ाई हेल्थ मिनिस्ट्री की ही समझते हैं, तो उनके ख्याल में इस तरह से इसको डॉक्यूमेंट करने की बात अभी ना आई हो। तो मैं भी वहाँ पे भी क्या है कि 4-5 सिस्टम्स हैं साइंस के अंदर, उनको भी बीच में मुझे लगता है कि अलग से इन्वॉल्व, मेरे को भी बैठे बैठे आया, इट मे बी ए गुड आइडिया, इट मे नॉट बी एन आइडिया विच इज़ रियली वर्थ इट, बट वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पे एक बार आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। और फिर जब ये सब कुछ हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक अनोखी कहानी है जहाँ चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके दिखा दिया सरकार ने। जब हमें तो पहले दिन से जो स्टेजेस थी, जो मेंटल फ्रेमवर्क था, और कैसे कैसे शुरुआती दौर में जो एम्बैरेसमेंट होता था जब टेलीविज़न पे टेस्ट 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 ऐसे करके लोग टॉन्टिंग करते थे, सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालते थे, यहाँ पर भी N95 मास्क नहीं है, यहाँ पर भी अस्पताल में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी ये चीज़ नहीं है, और अपने ही सिस्टम के अंदर से लोगों के बीच में जो है, और उसके अंदर से धीरे धीरे देखते देखते हम लोगों ने कैसे लैब्स की यात्रा को देखा है, कैसे लैब्स को आगे डेवलप करने की यात्रा को देखा है,
लॉकडाउन के अंदर सामान पहुंचाने की यात्रा को देखा है, लॉकडाउन में डिपोज खोलने की यात्रा को। इसी कमरे में इतनी सारी मीटिंग हुई हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और उसमें ये पीपी किट के एक एक करके 1, 2, 4, 10, 12, 15, 20 करते करते 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर और फिर 5 लाख रोज़ के पीपी किट बनने की यात्रा को जिस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल उसका क्षण क्षण हम लोगों ने एक प्रकार से देखा है। और वो क्षण भी देखे हैं शुरुआती दौर में, जब ये था कि लोगों के जान बचानी है तो जहाँ कहीं भी किट मिल रही है दुनिया में उसको ले लो, और उसके लिए वो आपका कौन सा रूल था कि जिस दाम पे मिलती है ले लो, क्योंकि जो है प्राण बचाने के लिए आपको ज़रूरी है। लेकिन फिर उसको भी परिवर्तित होते हुए देखा है कि हमने देखते ही देखते हमारे देश में लोगों ने किट बनाने की काबिलियत भी पैदा की, और फिर वही किट जो है उसको इतनी कीमत से इतनी कीमत तक आते हुए देखा। 10 लाख रोज़ के किट बनते हुए भी यहाँ पर देखे, 150 देशों में दवाई बढ़ते हुए देखी, आज 84 देशों में वैक्सीन को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जब शुरुआती दौर में हमको सेंसिटाइज होने में समय लगा, तो उस समय कैसे हम लोगों ने सारे देश के लोगों को सेंसिटाइज किया। वो एक स्लाइड होती थी जो शुरुआती दौर में लव वर्मा जी की जो स्लाइड्स आती थी, उसमें जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, लैब की स्ट्रेंथनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, वो ऐसे गोले के अंदर। तो वो एक एक जो उसका जो एक एक गोले का जो एक व्हील का जो वो था स्पोक जो था, और मतलब वो एकदम अपने आप में ही जो है वो कितने लाख, मेरे ख्याल से 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की हम लोगों ने उस दौरान उस पीरियड में कैपेसिटी बिल्डिंग की। बहुत 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 इतनी प्रकार की उस समय चीज़ें हुई हैं। और देखते ही देखते कुछ हज़ार से सारे देश में, क्योंकि मैं तो ये जो ये डाटा आता है मैं इसको कम से कम साल में 20-30 बार मैंने इसको जोड़ा है। ये जो डाटा आता है ना, इसमें ये एक ये आता है जो कितने कोविड के हमारे पास बेड्स हैं और कितनी ये डेडिकेटेड कोविड अस्पताल हैं, उसमें कितने बेड हैं, कितने ऑक्सीजन वाले हैं, कितने। तो ये मैं जोड़ता था, क्योंकि जब मैं मीडिया को बताता था मैं अंदाजे से बताना पसंद नहीं करता था कि ये 15 लाख हैं, अंदाजे से 16 लाख है, मैं एग्जैक्टली इतने लाख, इतने हज़ार, इतने सौ, इतने। तो देखते देखते मैंने देखा है ये डाटा जो है 19 लाख तक जो है किस तरीके से पहुंचा है। ये क्वारंटाइन सेंटर जो है एक से जो है ये 12,000 और इस लेवल तक किस प्रकार से पहुंचे हैं। लगभग ये जो शुरू में वो रोज़ अरुण सिंगल जी बताते थे, आज इतने और दे दिए हमने उनको N95 मास्क, इतने और दे दिए हमने उनको PPE किट्स देश को। फिर जुलाई अगस्त के आसपास, जुलाई में लगभग वो समय आया जब कुछ स्टेट्स ने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया कि अभी सामान हमको मत भेजिए, हमारे पास रखने की जगह नहीं। ये भी एक फेज़ आया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फेज़ की शिकायत वगैरह। और हम हर यहाँ पर जो इंटरेक्शन करते थे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर से, हम उनको बोलते थे इतना सामान आपके पास हम पहुँचा चुके हैं। तो कभी किसी ने, एक व्यक्ति ने भी, हिंदुस्तान के किसी हेल्थ मिनिस्टर ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। और देखा जाए तो बाय एंड लार्ज इतने बड़े देश में इतनी सारी सरकारों के साथ जो मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो काम किया, इंटरेक्शन किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको किसी ने बीच में मतलब एक्सेप्शन थोड़ा बहुत छोड़ दें तो किसी ने कहीं कोई ईगो के प्रश्न नहीं खड़े किए कि भाई हु आर यू टू गाइड अस, हु आर यू टू गिव अस ए लेसन। जो कुछ हम लोग बताते गए लोग रिलीजियसली फॉलो करते गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और समय समय पे अनेक अवसर ऐसे आए जब लोगों ने कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर फर्दर गाइडेंस, हमें इस इशू के ऊपर हमको और हेल्प करिए। और फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स ने,
होम मिनिस्ट्री ने किस तरह से बीच में हमारे को समय समय पे क्राइसिस आने पर, खासकर दिल्ली का जब मसला आया तो वहाँ तो जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स ड्रिवन भी होती हैं और पब्लिसिटी ड्रिवन भी होती हैं, तो वहाँ कई बार कंट्रोल करने के लिए समझने समझाने में भी कठिनाई होती थी। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को, तो इन ए वे बहुत ही एग्जॉस्टिव ये यात्रा रही है। और 2000 के अंत तक आते आते हम लोगों का जो सेटिस्फेक्शन जो कोफिशिएंट था वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ था। आज भी जब केसेस की भले ही संख्या बढ़ी हुई है, तो भी मैं आज सुबह भी काउंट कर रहा था तो 430 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ 7 दिन से 28 दिन के बीच में कोई भी केस नहीं आया है। यानी 7 डेज़, 14 डेज़, 21 डेज़, 28 डेज़ आप जोड़ लीजिए तो 430 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और कल आपसे बात हुई थी तो लेटेस्ट हमने 47 डिस्ट्रिक्ट से ही बातचीत करने की हमको ज़रूरत पड़ी कि भाई वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सर्ज, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ना सीख लिया है, टेक्निक हमको आ गई है और टेक्निक हमने देश के लोगों को सिखा दी है, सरकारों को भी सिखा दी है, ग्रास रूट लेवल पे जो हेल्थ ऑफिशियल है उनको भी सिखा दी है, डीएम्स को भी सिखा दी है और जनता को भी सिखा दी है। जनता भले ही लापरवाही करे लेकिन हम उसको रियलाइज़ कराते हैं, याद दिलाते हैं तो वो मान रही है कि हम लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही के बाद वो अपना व्यवहार परिवर्तन करे या ना करे, लेकिन मान रहे हैं कि हम लापरवाही कर रहे हैं, इसके कारण तकलीफ़ हो रही है। तो कुल मिला के बहुत सारी, और फिर जो सारे इस लड़ाई में जो सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इसको एकदम फ्रंट से लीड किया है। उन्होंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया है, स्वयं इतनी सारी मीटिंग्स की हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी ने इतनी सारी मीटिंग्स की हैं। यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में आपके पहले प्रीति सूदन जी ने मीटिंग की, फिर पिछले 6-8 महीने से आप लगातार कर रहे हैं। फिर हमारे भी जो टीम में आप लोग सब हैं, मैं किसी का स्पेसिफिक अलग से नाम नहीं ले रहा, सब ने अपना अपना जो भी विषय उनको दिया गया, उन्होंने उस विषय की गहराई में डूब के, तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ये जो 1 वॉल्यूम है या ये 2 वॉल्यूम जो है, दिस मे नॉट बी अल्टीमेटली बी सफिशेंट। और क्योंकि जब आने वाले हमारे लिए तो क्या है कि हम लोग कोई भी पेज पढ़ते हैं हमें लगता है ये तो है ही, हमें पता है, ये तो है ही है, हमें पता है, हमें पता है। लेकिन भविष्य में मान लो 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद किसी को डिपार्टमेंट के एंगल से अगर किसी को जो हेल्थ मिनिस्ट्री में आएगा उसको पढ़ के समझना होगा, तो शायद इससे भी 1-2 स्टेप उसको आगे डिटेल में जाना पड़ेगा। इसके भी जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर भी जो है ऐसी अलग अलग डिटेल्ड किताबें बनाई जा सकती हैं। आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही एक आप किताब बना सकते हैं, आपके कोविन प्लेटफॉर्म पे ही आप एक किताब बना सकते हैं, क्योंकि जो मान लीजिए कोविन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो चीज़ आए, रुकावटें आई, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ। अब इस लेवल की किताब में आप उसके डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर यू कैन नॉट राइट बियॉन्ड ए सर्टन लेवल ऑफ डिटेल, लेकिन उसके भी डिटेल्स क्योंकि आगे जब चुनौतियां आएंगी, और जो सबसे बड़ी चुनौती हमको नज़र आती है वो अभी तुरंत ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन की चुनौती है। और जैसा हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली सोचा कि कोविड की बहुत सारी जो स्ट्रैटेजी है, जिसको मैंने क्रूड भाषा में कहा था कि भाई 1 साल में इतना ज़्यादा हम लोगों ने कोविड का शोर मचा दिया, यानी उसके हर पहलू का, कि लोगों के जहन में वो आ गया। तो कोविड तो आया था और ये जाने वाला है। टीबी तो 50 साल से देश को, दुनिया को परेशान कर रही है। 25% टीबी दुनिया की भारत में है और उसके कारण मृत्यु दर भी इससे कई गुना ज़्यादा है। तो उसको हम क्यों नहीं इसी प्रकार से लोगों के जहन में उतार सकते।
जैसे अभी आज की तारीख में जहाँ टेस्ट होता था अप्रैल के फर्स्ट महीने में, बड़े टीवी चैनल इस तरह से जब टॉन्टिंग करते थे तब हम 6000 टेस्ट करते थे। आज हमने अभी 2-3 दिन पहले शायद 24 लाख टेस्ट किया। हाँ जी, 2.4 मिलियन टेस्ट इन ए डे, और इट इज़ नॉट ए जोक। तो और उसके लिए हमने सारी फैसिलिटीज़ भी क्रिएट की। एक लेबॉर्ट्री से शुरू किया, 2,04,34 शायद आज सुबह थी, इतनी लेबॉर्ट्रीज़ हमने वहाँ पे व्यवस्था कर दी। तो इट कैन ऑल बी रेप्लिकेटेड इन ट्यूबरक्लोसिस। और ये जो 3-4 साल की जो आगे की जो ट्यूबरक्लोसिस की लड़ाई, और या फ्यूचर में कभी भगवान ना करे कोई इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़े देश को, तो इसकी और फर्दर इसके विभिन्न पहलुओं की भी और ज़्यादा डिटेल्स भी हमको आने वाले जनरेशन्स के लिए उपलब्ध करानी होगी। वी मे नॉट बी हेयर ऑल द टाइम। जैसे आज भी जो मान लीजिए अधिकारी हैं, ये कल हो सकता है दूसरी मिनिस्ट्री में चले जाएं, हम भी यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ जो है वो कभी भी आ सकती है। आज पुरानी किताबें जो है 1918 की पढ़ने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, बहुत सारा उस अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलता है। तो इस अनुभव का लाभ भी जो है वो सारे भविष्य में लोगों को मिले, और इसके अनुभव से बहुत सारी चीज़ें रेप्लिकेट हो सकें। स्टेट्स को भी जो है मैं समझता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा, और उसी कॉन्फिडेंस का सदुपयोग करके उनको वो जो कॉन्फिडेंस किया, जो उन्होंने जो एबिलिटी विकसित की, उस एबिलिटी का उनको बार बार स्मरण करा के ही हमें उनसे आगे हेल्थ के अपने गोल्स को अचीव कराना है। उनको इस बात का एहसास कराना है कि यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, यू कुड राइज टू द ओकेजन in 2020, you can rise to the occasion again in 21, 22, 23, you can handle everything। क्योंकि कोविड से ज़्यादा लड़ाई डिफ़िकल्ट किसी बीमारी की नहीं है। आपकी जब कोविड की लड़ाई को आप देखते हो, और इसमें जिस तरीके से लोग 1 सेकंड में बीमार होते हैं, और अगर डिटोरेट होते हैं तो कितनी जल्दी हमारे अपने पार्लियामेंट मेंबर चले गए। आपके जानकारी में कोई ना कोई अधिकारी भी आपके होंगे, हमारे मिनिस्टर्स चले गए जो है इसके अंदर, हमारे कितने डॉक्टर दोस्त। आज भी डेली फेसबुक को खोलिए आप तो एक आध कोई ऐसा आ जाता, अरे ये चला गया अचानक। अभी भी ये स्थिति है। तो ऐसे ही मेरे कई जानकार जर्नलिस्ट लोग जो है वो फील्ड में काम करते करते जो है कोविड पकड़ा, और उनकी मृत्यु हो गई। तो कोविड तो उस मुकाबले बहुत ही टफ लड़ाई थी। और जितने प्रोग्राम आप यहाँ पर डिस्कस करते हो, कभी कोई आप काला आज़ार को हटाने की बात करते हो, कभी मलेरिया से लड़ने की बात करते हो, कभी टीबी से लड़ाई लड़ने की बात करते हो, कभी आप मीज़ल्स को ख़त्म करने की और इम्यूनाइजेशन को 100% ले जाने की बात करते हो। बातें तो आपकी वही है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी और इम्प्रूव करने की बात करते हो। वो तो लड़ाई इन लड़ाई के मुकाबले बहुत कंपैरेटिवली आसान है। अब एनीमिया ख़त्म करना है, एनीमिया तो भारत जो है इस लड़ाई के मुकाबले आप देखिए ज़रा, न्यूट्रिशन को आपको ठीक करना है इस लड़ाई के अंदर तो सीधा सीधा रिस्क इन्वॉल्व था, हर समय टेंशन थी। लड़ाई को लड़ते समय जो उसका विक्टिम है उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता था, लड़ाई लड़ने वालों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता था। दूसरी लड़ाई है इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये लड़ाई जो है इसका जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से लाभ है, और जो रिकॉर्ड पे आना चाहिए, और जो सब लोगों को हमें बार बार प्रेरित करना चाहिए कि ये लड़ाई जो है इसने हमें बहुत ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस दिया है, और एडवर्स सिचुएशन को भी हम कैसे अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित कर सकते हैं, ये हमने इस लड़ाई के अंदर सीखा भी है, करके दिखाया भी है। और शायद दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों से भी हमने बेहतर, इसलिए नहीं कह रहे कि भाई हमारा देश है तो हमें तारीफ़ करनी है, इसको आज दूसरे लोग बोलते हैं।
अमेरिका में भी जो लोग लड़ाई को लड़ते हुए लोगों को देख रहे हैं, वो भी वहाँ के लोग भी जब यहाँ की लड़ाई की बात करते हैं, वो भी कहते हैं हम यहाँ की भी देख रहे हैं और आपकी भी देख रहे हैं। वो भी कहते हैं कि भारत ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। और जबकि एक नहीं 36 स्थानों पर एक तरह से लड़ाई लड़ी जा रही थी। 36 तरह के विचारों वाले लोग थे, 36 तरह के डायनामिज़म के लोग थे, और ज़मीन तक जाकर जो है कितने तरह की जो है कम्प्लेक्सिटीज़ थी। तो ये चेजिंग द वायरस जो है, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रयास है। और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने व्यक्तिगत तौर पर अगर सही में इसका एक एक लाइन पढ़ के इसको एडिट करके फ़ाइनल किया है, तो इसमें मतलब इस बात की संभावना कम है, नगण्य होनी चाहिए कि भाई इसमें कोई इसके अंदर से भी कोई इशू। वैसे तो हमारे मीडिया के भाई तो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसमें भी कोई ना कोई मीन मेक निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है। मीडिया ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है, और मैं समझता हूँ कि मुझे बाकी का डायरेक्ट नहीं, लेकिन पोलियो का अनुभव है कि पोलियो में उसकी सफलता में 94 में, जिसके कारण पोलियो 95 में नेशनल प्रोग्राम बना, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, और उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और यहाँ पर जो दूरदर्शन है, इसका जितना बड़ा रोल था मैं समझता हूँ शायद किसी का नहीं था उस ज़माने में। 94 में दूरदर्शन के डायरेक्टर मिस्टर पहाड़ी थे, अभी वो आज जीवित नहीं है। उनका जितना बड़ा रोल था, जिस तरीके से उन्होंने दूरदर्शन का इस्तेमाल किया, उस ज़माने में 2 ही टेलीविज़न होते थे, दूरदर्शन और जी टेलीविज़न, इन दोनों ने असाधारण सहयोग किया। और कोविड में भी हमने देखा कि हम अस्पताल में आईसीयू में गए, कोविड वार्ड में गए, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ ये पीछे पीछे नहीं चल रहे थे। और जहाँ पे इनको पीपी किट पहनना पड़ा, पीपी किट भी पहना, मास्क भी पहना। बहुत जगह पे हमने तो मास्क उतारा नहीं, ये तो मास्क भी ऊपर नीचे करते रहते थे, मतलब रिस्क भी लेते रहते थे या जो भी कह लीजिए। लेकिन साथ इन्होंने पूरे कोविड की लड़ाई में मीडिया ने हम लोग का नहीं छोड़ा। इसीलिए हम लोगों ने कहा भाई ये भी बड़े कोविड वॉरियर ही की कैटेगरी के लोग हैं, कोविड वॉरियर ही हैं ये। तो बहुत बहुत बधाई है। अब ये कोविड की लड़ाई और इस वायरस के बारे में तो कितने घंटों तक हम लोग, कोई भी किसी को भी खड़ा कर दे तो आप पूरे दिन रात बोल सकते हैं। इतने हमारे पास, सबके पास एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, लेकिन उनको बेस्ट जो भी कुछ इसमें कैप्चर हो सकता है, जो कि फ्यूचर के लोगों के लिए लर्निंग हो, और जिसको पढ़कर लोगों को स्मरण हो जाए कि भाई हाँ ये लड़ाई इस तरह से लड़ी गई है, तो वो मेरे ख्याल से हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अभी हमारे पास टाइम है, कोई इसमें इमरजेंसी नहीं है कि कोई इसको एकदम हमें 2 ही दिन में पूरा करना है। अभी तो लड़ाई का हमें जो क्या कहते हैं उसको, परिमाप कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, और उसका नहीं परिणाम नहीं, एक होता है ना जो कोई है हिंदी का जो किताब लिखते हैं, आधार नहीं हैं, नहीं एक शब्द होता है ना, परिमाप होता है, क्या होता है एक हिंदी में, मैं भूल, परिमाप होता है ना। हाँ, तो वो मैं परिमाप का जो मतलब होता है वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल से, इफ़ आई एम राइट। तो वो अभी तो इसके बहुत सारे वो हैं, डायमेंशंस हैं बेसिकली, जो है देखा जाए तो बहुत बधाई है। ये बहुत ये भी आपने तो काफ़ी दिन से तैयार की हुई है, 2-3 बार इसको औपचारिक तौर पे करने के लिए समय भी तय हुआ, लेकिन ये शुरू हो गया है काम। तो हम समझते हैं कि ये किताब का वॉल्यूम से जो है इसका वायरस का भी खात्मा हो, और वॉल्यूम 2 जो है उसके अंदर थोड़ा सा इसको कुछ थोड़ा सा रीडिफाइन भी करें, उस सेंटिमेंट को कैप्चर करते हुए कि अब वायरस को हम चेज़ कर रहे थे और वायरस हमारे पीछे पड़ा था, लेकिन अब हमने उसको खात्मे की तरफ पहुंचा दिया है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया है सबका। Sir, I think, sir, words are not sufficient to highlight the type of guidance and leadership you had provided to the whole COVID response, sir.
I think this first volume is a testimony to the guidance and leadership you gave to all of us, sir. I think our sincerest thanks are due to you, sir. Preeti ma'am and Rajesh Bhushan sir had been the most important guiding force who managed multitudes of pressures and managed this pandemic, sir. So, I mean, without them also, sir, things would not have happened. Our sincere thanks are due to them, sir. Sir, as you rightly mentioned, everyone in this room, sir, in so many forms, all of them have contributed to this battle, sir. And not only people in this room, sir, across the spectrum of people, everyone supported us, sir. I think, sir, this is a book, sir, for which thanks are not only due to people in this room, but people outside who supported us, sir. And as you have guided, sir, we will look forward for the second volume with greater emphasis on the issues you have put across, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone, please.